Hello and welcome to Reality Check. The first phase of Uttar Pradesh's elections in western Uttar Pradesh is about to come to a close. And the BJP has made one of its key issues the reviving of a nearly 6-year-old inflammatory claim of the mass exodus of Hindus from the town of Kairana after targeted attacks by Muslim criminals during the Samajwadi Party rule. Every top leader of the BJP has brought up the quote-unquote Kairana Hindu exodus, from the Home Minister to UP's Chief Minister, claiming that after the BJP came to power, there's been a crackdown on these criminals and the Hindus who fled have come back. यहाँ पर हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। 2017 के बाद सरकार ने जो कार्रवाई की थी उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई। ये ही कोरोना है, किराना है, जहां पहले से लोग पलायन कर रहे हैं। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। Now this was surprising, not just because the Hindu exodus claim had long been discredited by the very BJP leader who first raised it. My colleague Mariam Alvi travelled to Kairana to separate the BJP's claims from the ground reality. Kairana, Uttar Pradesh, 3 hours north of Delhi. Now at the heart of the BJP's political rhetoric. But ironically, the first BJP leader who made the claim of the Hindu exodus from Kairana, the late Hukum Singh, the BJP MP from Kairana, withdrew his claim just days after. In 2016, just before the 2017 UP elections, Singh released a list of 346 Hindu families he claimed had fled from Kairana because of the targeting by mainly Muslim criminals. फैक्चुअल जानकारी के आधार पर ही ये नाम लिखे गए हैं और ये नाम भी अभी एग्जॉस्ट नहीं करते लिस्ट को। ये लिस्ट तो आगे बढ़ने की भी मुझे उम्मीद है कि 400 से पहुंचेगी या 500 पे पहुंचेगी। ये क्रिमिनल्स क्या किसी विशेष वर्ग से हैं? हाँ, विशेष वर्ग से क्या, उनके क्योंकि नाम है, किसी का नाम कयूम है, किसी का नाम अब्दुल है, किसी का नाम नसीम है, तो नाम से अंदाजा लग जाता है कौन है ये लोग। Within a matter of days, the local administration disproved the list, saying close to 320 of the 346 had either moved out before the Samajwadi Party government came into power or in search of better employment opportunities. 16 people were dead, and that only 3 people had fled because of fears of extortion, leading to Hukum Singh withdrawing his claims, saying it was not a Hindu-Muslim issue. It's not about Hindus and Muslims. It's my stand. It has always been my stand. And by mistake somebody mentioned Hindu Parivar. I also asked him to correct it. And yet, the BJP has once again doubled down on the claim, with Amit Shah and Yogi Adityanath in Kairana meeting the Hindu families who reportedly fled because of the threats and returned after Yogi became the chief minister. When we asked the BJP to share a list of names of those met by Amit Shah, they shared a list of 6 families with us. But speaking to them and to locals and sifting through their claims throws up multiple loopholes in the BJP's narrative of a mass Hindu exodus triggered by the targeting of Muslim criminals. One such family whom Amit Shah met was of Vinod Singhal, a local trader who was allegedly shot dead by extortionists in 2014, forcing them to flee and to return after 2017. But at the family store, his younger brother Sonu Singhal refused to speak to us, telling us that he had never left Kairana. अच्छा, तो आप लोग यहाँ से निकले नहीं थे Kairana से? नहीं थे। लेकिन आपका तो ये कह रहे थे कि शायद आप पलायन करके वापस आए हैं योगी सरकार के बाद। नहीं। ये हमारे यहाँ मेरे भाई का मर्डर हुआ था। अच्छा। Another person on the BJP's list who did speak to us was Rakesh Garg, who runs a sweet shop. He said he was out of town and spoke to us over the phone. While he did say that he left Kairana after he received an extortion call, he also agreed that all communities were troubled by the Gundagardi.
हाँ, 2014 में हमारे साथ हादसा हो गया था रंगदारी मांगने का। अच्छा। तो हम एकदम से, क्योंकि उस टाइम मर्डर भी होते 2-3 शहर के अंदर, तो अपना कभी घबरा जाते हैं ऐसी स्थिति में, तो हमें एकदम से किराना छोड़ना पड़ता। तो जब 2017 में इलेक्शन हुए, इलेक्शन में सरकार बदल गई, तो जब माहौल ठीक लगा तो इधर किराना वापस आ गए सब लोग। एक कैराना का लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू था जिससे सब लोग परेशान थे, या फिर सिर्फ एक ही समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा था? ज्यादातर तो एक ही समाज के लोग परेशान थे। लेकिन वो किस आधार पर कह रहे हैं आप? यहाँ पे तो वो तो हर गुंडागर्दी तो हर किसी का होता है, हर किसी के खिलाफ होता है। गुंडागर्दी में तो वो सबको ही परेशान करते थे। Lokesh Kumar, a tea shop owner who met Amit Shah, insisted that it was mainly Hindus who were targeted, though was unable to back his assertions when pushed. गुंडागर्दी जहाँ मतलब होल्ड मोम दोनों का है, तो मोम नहीं गुंडागर्दी करेंगे। परेशान किसको करे जाएंगे? हिंदुओं को। अब मान लो एक मकान हमारा यहाँ है, ये तो योगी जी की देन है जो हम यहाँ पड़े। नहीं, यहाँ तो अगर योगी जी की सरकार चली गई ना, एक दिन भी नहीं रह सकते हम यहाँ पे। उस टाइम पे मीडिया के जो रिपोर्ट्स आए थे उसमें ये भी कहा था कि 115 मुसलमान फैमिली भी निकले हैं यहाँ से। कहाँ से जी? यहाँ से, कैराना से। वो भी पलायन करके निकल गए थे। पलायन नहीं, उनका तो जो है बाहर रोजगार है, वे तो बाहर कपड़ा बेचे हैं। कपड़े का काम है उनका, कपड़ा बेचेंगे, बाहर तो धाड़ा मारेंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे। However, those standing nearby denied this. गुंडागर्दी थी वही खत्म होगी। अब जब कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, कोई दिक्कत है, सब और कारोबारी है। कारोबार यहाँ है नहीं, कारोबार करने जाते हैं पानीपत में, शामली में, और यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है जी। अच्छा, लेकिन आपके सामने ही दूसरे लोग कह रहे हैं कि वो तो यहाँ से डर से निकल गए थे। जी, में पहले गुंडे थे ना, गुंडागर्दी थी ना पहले, वो गुंडों की वजह से निकल गए थे। नहीं, यहाँ कोई प्लान नहीं हुई आज तक। अच्छा, हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत से रहे हैं यहाँ सब। अच्छा, आप कौन सी बिरादरी के? गुज्जर हैं जी। गुज्जर के हैं। तो आप खुद यहाँ से कभी निकले नहीं है? नहीं नहीं जी, कभी नहीं। अच्छा, लेकिन ये तो कह रहे डर से निकले, आप कह रहे हो रोजगार के लिए निकले? रोजगार के लिए जाते हैं, ये भी जाते हैं जी, पानीपत जाते हैं नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, क्योंकि रोजगार नहीं है यहाँ, कोई फैक्ट्री तो है नहीं जी। In the markets of Kairana, traders of all faiths agree that the Gundagardi was not, as the BJP suggests, a communal issue. देखिए, मैं स्पष्ट तौर से बता देना चाहता हूं अभी सभी सुनने वालों को कि कैराना में कभी भी सांप्रदायिक झगड़ा तो हुआ नहीं, ना यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम वाला इशू है। तो हाँ, ये सच्चाई है कि यहाँ 2014 में जो पिछली सरकार थी हमारी, उसमें जो है बदमाशी बहुत चरम सीमा पर पहुंच गई थी, और बदमाशों के द्वारा जो है बहुत से व्यापारियों से रंगदारी मांगी गई, और उन्हें ना देने पर दिन दहाड़े मर्डर करने की चेतावनी दी गई। ये जो जिनको ये खत मिले, ये धमकाने वाले खत मिले और जिनसे पैसे मांगे गए और बाद में जो चले भी गए, ये सारे सिर्फ हिंदूज थे? देखिए, अजब इत्तेफाक भी हो सकता है। देखिए, मेरा तो मानना है बदमाशी को जाति नहीं होती। पहली बात तो यही है, बदमाश जो है बदमाश है, चाहे किसी भी जाति का है। लेकिन ये कह लो कि भाई बदमाश किसको ढूंढेगा? अच्छे पैसे वाले को जो दे सकता हो। या तो आप ये कह लीजिए कि भाई वे बाजार के जो मौजूद लोग थे 5-7 जिन पर भी दृष्टि गई, वे एक विशेष कम्युनिटी से थे, जो तो आप ये कह लीजिए। लेकिन बाद में पता लगा, बाद में लोग बताते हैं कि दूसरी कम्युनिटी लोगों को भी जो है 2-4 को चिट्ठी गई है। Not just the locals, the district administration too does not have any official proof of the large-scale Hindu exodus yet. The district magistrate refused to speak to us on camera, but said that verification had found only 2 to 3 families whose family members had been killed and they'd left Kairana. They're now doing a survey to see actually how many people had left and how many have returned. But what of the criminals themselves? As per media reports, the criminal whose name crops up most often is Muslim, Mukim Kala, said to be the main force behind the extortion threats and violence. Kala, however, was arrested in 2015 when the Samajwadi Party government was in power. At the time of his arrest, he was accused of 14 murder cases, 3 Hindus, 11 Muslims. He was killed in 2021 in a shootout in jail. The BJP candidate for the Kairana seat, Mriganka Singh, is the daughter of Hukum Singh, who had first raised the issue. In her speech, she refers to law and order concerns. पता नहीं आपको अनुमान भी है कि नहीं, आपको कितना भारी नुकसान हुआ इसका?
But when asked, she and her supporters too agree the so-called exodus was not a communal issue. बट इसमें जो बीजेपी आप जो कर रहे हैं वो इसको एक सांप्रदायिक रंग भी दे रहे हैं कि हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हिंदूज आर लीविंग और माइग्रेटिंग। ये भी एक सच्चाई है कि इसमें से जो लोग ज्यादातर छोड़ के गए वो हिंदू समाज से रहे हैं और जो लेकिन ये इसलिए नहीं हो सकता। जो मैं व्यापारियों से बात कर रही थी उनका ये कहना था, वो एक इत्तेफाक की बात है क्योंकि व्यापारी ज्यादातर हिंदू थे, जो बड़े व्यापारी थे। ये सांप्रदायिक का ये नहीं था कि ये हिंदू को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो बता रही है वो ऐसे ही प्रेजेंट कर रही है ना कि हिंदूज को टारगेट किया जा रहा था। नहीं, पर ये भी तो एक फैक्ट है कि जो लोग यहाँ से छोड़ कर गए थे वो लोग हिंदू व्यापारी रहे थे और वो यहाँ पर बहुत मजबूरी से छोड़ के गए, अपने घरों में ताले बंद करके गए। और 2017 के बाद स्थितियाँ इतनी बदली है कि कानून व्यवस्था का राज है और योगी जी का जो एक जीरो टॉलरेंस है अपराध के प्रति, उस कारण से यहाँ पे स्थितियाँ नियंत्रण में हैं और अनेकों परिवार, कम से कम भी 20-25 परिवार उस लिस्ट में से वापस लौटकर यहाँ पे स्थापित हुए हैं कैराना में। सच्चाई तो ये है कि दे आर ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, उनको टारगेट किया गया। दे हैपन टू बी हिंदूज। उनको इसलिए तो नहीं टारगेट किया गया क्योंकि वो हिंदू हैं, उनको इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि उनके पास पैसे हैं। हाँ जी, है ना? जी, वो संपन्न व्यापारी थे। हाँ। और इसी कारण उनको टारगेट किया गया। Political rhetorics aside, the ground reality seems to be this. While many here agree that the specter of criminality was much worse during the Samajwadi Party's rule, there is very little evidence to back the BJP's claims of a mass Hindu exodus triggered by the selective targeting of Muslim criminals. With camera person Mohammad Mursaleen, this is Mariam Alavi for NDTV. Well, joining me on Reality Check, I have with us Shant Prakash Jatav ji, BJP leader from UP, IP Singh, national spokesperson Samajwadi Party, and Sharad Pradhan from Lucknow, senior journalist. Thank you very much indeed for joining us. So, Sharad Pradhan, what do you make of this? Because as our ground report found, that BJP has once again revived this claim, even though Hukum Singh, the BJP leader who made it at the very beginning, he himself had done a U-turn and said this was not a Hindu-Muslim issue. I myself spoke to Hukum Singh and wrote in a number of places. I wrote way back that this was, he expressed regret that he had been misinformed about this, and it was not an exodus of Hindus. It was a coincidence that some of the people who left the place happened to be Hindus. And there was a case of one particular family which was targeted by a Muslim criminal who eventually got shot. So, but I'm not surprised at what Amit Shah is doing or the BJP has been doing. Right. Despite the fact that their own leader, Hukum Singh, who was a very widely respected person, I knew him pretty well. And you need courage to backtrack on what you have, a wild allegation that he had made. Right. After the ground check that was done, there was a huge story done by the Indian Express in which they went to every home, every name that Hukum Singh had given in his list of 350 people. Yeah, and then they still found that they were right. Let me try once again. Okay. BJP insists on doing it, Vasu, simply because they want to turn the election into a communal. They have nothing else to do other than making everything Hindu-Musliman. Okay, Shant Prakash जी, अब आप पे आते हैं। अब आप आवाज आ रही है ठीक से? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो यही मेरा सवाल था कि ये जो दोबारा पलायन का, हिंदू पलायन का जो मुद्दा बीजेपी ने उठाया, अमित शाह, योगी जी सब उठा रहे हैं, जब खुद आपके नेता हुकुम सिंह जी ने, स्वर्गीय हुकुम सिंह जी ने खुद माफी मांगी थी, जिन्होंने सबसे पहले उठाया था, उन्होंने खुद माफी मांग के कहा कि ये गलत, मुझे मिस इन्फॉर्म किया गया, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम तो मुद्दा था ही नहीं। देखिए, अगर हम अभी आपने बहुत अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट जो पेश की जी, उसमें आपने सब शीशे की तरह एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिखाया जी। उसमें जो उस वक्त गुंडागर्दी करने वाले जो लोग जो थे, उन्होंने जिस तरीके से वहां पर लोगों को प्रताड़ित किया, उगाही करने की कोशिश की, और विशेष रूप से वो लोग जो वहां पर व्यापारी थे और पर्टिकुलर वर्ग से थे, वो लोग पीड़ित हुए, तो और अल्टीमेटली उनको वहां से जाना पड़ा। नहीं, जब हम सरकार में आए, नहीं, शांत प्रकाश जी,
भाजपा का आरोप यह नहीं है कि व्यापारियों को टारगेट किया गया, भाजपा का यह आरोप है कि हिंदुओं को टारगेट किया गया और उनको वहां से भगाया गया। इसको हिंदू पलायन बताया जा रहा है, व्यापारी पलायन नहीं बताया जा रहा है। जबकि हुकुम सिंह जी ने खुद कहा कि ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है, तो इसीलिए आप बार बार लोगों को इसे हिंदू मुस्लिम करके भड़का क्यों रहे हैं, ये आरोप है। बिल्कुल नहीं, भड़का नहीं रहे। दुर्भाग्य से जिन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया वो भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के थे और उन्होंने टारगेट जिनको किया वो भी एक विशेष वर्ग से थे। तो ये अपने आप ही उसी तरीके से देखा जा रहा है, नहीं, उसी तरह से आप देख रहे हैं, और जो पीड़ित करने वाला था वो मुस्लिम था। शांत प्रकाश जाटव जी, वो आप उसको उस दृष्टि से देख रहे हैं कि जिन लोगों को टारगेट किया जा रहा है उसको संरक्षण समाजवादी पार्टी का मिल रहा था। अरे जो वहां के व्यापारी हैं, शांत प्रकाश जी, वहां के व्यापारी खुद कह रहे हैं कि हमें टारगेट इसलिए किया गया था क्योंकि हम व्यापारी हैं, नॉट बिकॉज हम हिंदू हैं। मगर टारगेट करा किसने भाई? टारगेट किया वहां के गुंडों ने। नहीं, वो भी मैं वही बात बता रहा हूं कि जिनको टारगेट किया, जिन्होंने टारगेट किया वो मुसलमान थे, दुर्भाग्य से। अरे और उनको संरक्षण प्रकाश जी, वो सरकार का था। अगर सरकार उस वक्त में उन गुंडों के ऊपर लगाम रख लेती तो ये विषय ही नहीं उठता। शांत प्रकाश जी, दोबारा आप इसको एक सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं कि इफ द क्रिमिनल्स हैपन टू बी मुस्लिम एंड द विक्टिम्स हैपन टू बी हिंदू, देयरफॉर इट इज टारगेटिंग हिंदूज, जब वो बात खुद वहां के लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं है। नंबर 2, आपने हमारे ग्राफिक्स में देखा होगा कि वहां का जो मेन गुंडा जिसके अगेंस्ट आरोप था, उसकी गिरफ्तारी 2015 में हुई जब सपा की सरकार थी। और इंटरेस्टिंगली उसके खिलाफ जितने मर्डर केसेस थे, कैन आई जस्ट कम इन हियर? देखिए, केवल एक जिसकी गिरफ्तारी की गई वही नहीं था, उसके अलावा तमाम जो बदमाश थे, गुंडई करने वाले, सबसे बड़ा तो उसी का नाम था। तो अभी 2007, देखिए एक आदमी से काम नहीं होगा ना। 2017 के बाद में जब लोगों को पकड़ा गया, आईपी सिंह जी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। आपको जेल में ही रखने के लिए सोच रहे हैं कि हम जेल में ही रहें, कि बाहर निकले तो मार दिए जाएंगे। मुकीम काला जो है गुंडागर्दी, बाय द वे, आप जो कह रहे हैं कि एक वर्ग के व्यक्ति ने दूसरे वर्ग को टारगेट किया, ये जो गुंडे हैं इनके खिलाफ आरोप है कि इन्होंने 14 लोगों के अगेंस्ट मर्डर किया है, जिसमें से 3 हिंदू हैं और 11 मुसलमान हैं। 11 मुसलमान हैं, एग्जैक्टली यही मैं बोलना चाह रहा हूं। ये पर्टिकुलर एक का तो आपने देखा ना, बाकी और लोग, आपका और वो वाला थ्योरी भी थोड़ा डगमगा जाता है। और भी गुंडे हैं। अच्छा, और भी गुंडे, ठीक है। आईपी सिंह टारगेट किया वो जो है हिंदू थे। अच्छा, आईपी सिंह जी, टेल अस दिस, दैट इवन इफ द क्लेम ऑफ अ कम्युनल एक्सोडस डजंट स्टैंड स्क्रूटनी, the fact is that there was gundagardi during the Sapa regime, that all the businessmen and locals there are saying, and they said that was a menace of your regime. श्रीनिवासन जी, मैं हाथ जोड़ के मेन स्ट्रीम मीडिया से अपील करना चाहता हूं कि चुनाव का वक्त है और बीजेपी के एजेंडे पर हम सबको चर्चा करने से बचना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में 403 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, मोर देन 30 करोड़ आबादी है। yes. और उत्तराखंड में माइग्रेशन को लेके देखिए तो हजारों घर लॉकआउट पड़े हुए हैं। नहीं सिंह साहब, मैं आज अपने गांव से एक सेकंड मेरे सवाल पे आइए। देखिए, दिस इज नॉट अबाउट बीजेपी एजेंडा। हमने बीजेपी के क्लेम को फैक्ट चेक किया है और उसमें कई कमजोरियां पाई हैं, लेकिन उसमें जो क्रिमिनलिटी का आरोप है, that during Sapa regime there was criminality, this is not, we are saying this is not necessarily BJP agenda. This people there are telling us. Do you concede that there was a failure on your part to curb criminality? I'm not making this turning into a communal thing. Criminality per se. देखिए, कैराना की बात जो कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूं कि 403 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मैं पूर्वांचल में इस वक्त हूं। मेरे जिले में इतने बड़े बड़े अपराधी हैं और कम से कम 50 मर्डर किए हुए हैं। बनारस में बड़े बड़े अपराधी हैं, उनके ऊपर 100 मर्डर के आरोप हैं। उनसे लोग डरते हैं। क्या योगी सरकार ने पूर्वांचल में या उत्तर प्रदेश में इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की? क्या कैराना में जो कुछ हुआ
उसके साथ जो तत्कालीन सरकार थी, कंटेम्परेरी गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिए, जो अपराधी रहे हैं समय समय पर। मैं रमेश कालिया को याद दिलाना चाहता हूं, हमारे साथ तो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए, वो तो लखनऊ के मतलब एक एक चीज से वाकिफ है। रमेश कालिया ने 30 से ज्यादा मर्डर किए थे, और जब नेताजी उत्तर प्रदेश के तीसरी बार, अच्छा आप किसी गुंडे की बात कर रहे हैं? जी अच्छा, उसका इनकाउंटर समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ। नहीं, बट द फैक्ट इज यादव था। अच्छा चलिए यादव था, बट द फैक्ट इज शरद प्रधान, अच्छा ठीक है मैं आता हूं शरद, बट द फैक्ट इज शरद प्रधान दैट इवन इफ द कम्युनल क्लेम is somewhat dubious, this perception of the Sapa somehow giving sanctuary to criminals or turning a blind eye to criminals has become an issue. It's a major issue that the BJP is raising, and but by doing so, they are trying to magnify it far beyond proportion. It may be, to some extent, may be true that yes, in certain pockets, certain areas, criminals somehow did get, and this perception was pretty wide and widely visible, that they were getting some kind of no action was taken against them, a lot of criminals. But that doesn't mean at the same time, even today, criminals continue to get that privilege, even under the BJP regime, even under Yogi Adityanath. But they, the kind of bombardment they do of lies or half truths, they want to overwhelm you by saying that crime was only there during Sapa time. Okay, crime continues even at this time, and there are people who get patronage from this government. Right. उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। शांत प्रकाश यादव जी, एक तो जैसे हमने बताया कि जो कम्युनल आप उसको एंगल दे रहे थे वो तो सामने नहीं आ रहा है, टारगेटिंग हो रही थी बिजनेसमैन की। दूसरी बात, जो पलायन जिससे लगता है कि हजारों मतलब संख्या में लोग भाग गए, खुद हुकुम सिंह जी के लिस्ट में कुछ उन्होंने 350 350 नाम दिए थे कि इतने परिवारों का यहां से पलायन हो गया। उसका जब प्रशासन ने जांच किया तो पता चला कि 320 तो किसी नौकरी या किसी और वजह से चले गए या सपा के कार्यकाल से पहले निकल गए थे, और सिर्फ 3 लोग वहां से चले गए थे क्योंकि उनके अगेंस्ट गुंडा मतलब धमकाया जा रहा था उनको। तो 3 लोगों का अभी तक उदाहरण सामने आया है। तो 3 लोगों के आधार पे क्या यह उचित है कि एक मुख्यमंत्री, एक देश के गृह मंत्री जाकर इस तरह से लोगों को उकसाए? 3 परिवार 350 लोगों ने जो बाहर गए, उनमें से 3 को तो ये हमने मान लिया, और उनका हमें क्लू भी मिल गया कि वो लोग किसी की धमकी के कारण से गए। बाकियों ने अपने आप को वहां से माइग्रेट करना मुनासिब समझा, क्योंकि वो नहीं रह पा रहे थे उस वक्त का वहां का जो एटमॉस्फेयर था। नहीं, अरे जान प्रकाश जाटव जी वो माइग्रेट इसलिए कर रहे थे, आप ही मतलब सरकार की प्रशासनिक रिपोर्ट है, क्योंकि वहां जैसे लोग जाते हैं पलायन के लिए कि भाई नौकरी के लिए लोग यूपी से पूरे देश में जाते हैं, उसी तरह वो चले गए वहां से। 3 तो अपराध हुए ना, 3 तो जस्टिफाई हुए ना, अपराध तो एक भी टॉलरेबल नहीं है ना। आपने खुद माना कि उनकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 3 परिवार जो हैं वो परेशान होकर के गए। नहीं, शांत प्रकाश जाटव जी, आप इतने रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी के वो हैं, प्रचारक हैं कि एक भी अपराध टॉलरेबल नहीं है, लेकिन उसको लेकर एक पूरा कैंपेन चलाना कि बहुत बड़ा यहां से एक्सीडेंस हो गया 3 लोगों के जाने से, ये 3 लोगों के जाने को पलायन कहेंगे क्या? 5 साल अमित क्यों नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो आप पलायन शब्द का इस्तेमाल तब होता है। अच्छा, तो आप मान रहे हैं कि सिर्फ 3 लोग थे? कर रहे हैं, उनके इंपॉर्टेंट थिंग व्यक्ति जा रहा है, तो वो तो पलायन कहलाएगा, वो तो अपराध है। अच्छा, तो 3 आप मान रहे हैं, ये बड़ी चीज है, आप मान रहे हैं, भाजपा मान रही है कि सिर्फ 3 लोगों का पलायन हुआ था, दैट्स इट। आपने जो बात कही है, मैं उस बात में सहमत हो रहा हूं, सहमति दे रहा हूं कि आपने इस चीज को माना ना कि 3 परिवार वहां से गए। मैं कह रहा हूं, मैं उस एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट का जिक्र कर रहा हूं। ठीक बात है, 350 लोगों के ऊपर वो एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना कंक्लूजन दिया है जी, तो उसमें 3 तो पीड़ित थे जी, एक भी पीड़ित होने पर वो बात जो है, जो हम बात कह रहे हैं, वो जस्टिफाई होती है।
एक भी पीड़ित होने पर जस्टिफाई होता है, आप कह रहे हैं। निवासन जी, मैं बिल्कुल। आईपी सिंह जी बताइए। बताना चाहता हूँ, जिया मऊ के अंदर गुड्डू खान की अपनी प्रेस थी और हिंदुओं से वो इतना ज्यादा पीड़ित हुए कि वो प्रेस और घर बेचकर चले गए, और उनके साथ 4 घर और थे, वो लोग भी बेच के चले गए। ये जिया मऊ चीफ मिनिस्टर आवास से 900 मीटर की दूरी पर है। ऐसे 7 परिवार थे जिया मऊ में। अच्छा। आज भी उसका टेस्ट कर लीजिए। चलिए, वो लोग चले गए, उनका चलता व्यवसाय था, उनका अपना बनाया हुआ घर था, वो बेचारे क्यों चले गए? इसका मेन निकल के आता है। चलिए, वक्त खत्म हो गया। द मेन थिंग, ओके, द मेन थिंग दैट emerges from this whole sorry episode is that unfortunately Gundaism and the Gunda politics nexus continues, but to give it a communal color is highly dangerous and not backed with evidence. That's all the time we have on Reality Check. We'll have to leave it there. Good night.